Very good morning, everyone. This is just Radev Singh. Today we are discussing 24th November 23 The Hindu discussions. We are leading uh, the Hindu important news of the front news with the front news and editorials news. That's important for the everyone's. दोस्तों हम सभी के लिए द हिंदू का इम्पोर्टेंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और साथ ही साथ वोकैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है आंसर राइटिंग में। तो इसी के मद्देनजर हमने द हिंदू स्टार्ट किया है, तो आई होप आप सभी इसको लाइक करेंगे, साथ ही इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे अपनी तैयारी के दौरान इस द हिंदू के इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए। क्योंकि दोस्तों जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी के दौरान हम द हिंदू लेट कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए तैयारी का कहीं ना कहीं एक हर्डल के रूप में सामने आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के द हिंदू के टॉप न्यूज, फ्रंट न्यूज और साथ ही साथ हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज के हमारे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंस हो। तो सबसे पहले दोस्तों रोज का जो टॉप हेडलाइंस फ्रंट न्यूज है उसको पढ़ना इम्पोर्टेंस हो जाता है, भले ही कि वो रोज न्यूज आता हो। और सबसे पहले मैं बता दूं कि द हिंदू का जो फ्रंट न्यूज है, और साथ ही हम जब इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों के बाद, या फिर हम हमारे से बहुत दिन हिंदी मीडियम वालों का क्या है कि इंग्लिश छूट जा रहता है, उनका प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है ठीक नहीं होता। तो इनिशियल स्टेज में हम सारे लाइन बाय लाइन जो है जोर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ताकि जो जितने भी नए वोकैब हैं, नए शब्द हैं, उसमें यूज टू हो जाए और उसको अच्छे से हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट हो जाए। इसलिए फ्रंट न्यूज का जो होता है वोकैब वो स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है कंपैरिजन देन अदर पेजेस। तो हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आप भी सुन के अपना इंग्लिश स्ट्रांग करने के लिए जो लाउडली स्पीक करें उस वकैब को। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रंट न्यूज के फर्स्ट टॉप बुलेटिन के साथ। तो फर्स्ट में है गवर्नर होल्ड ऑन वीटो पावर, गवर्नर होल्ड नो वीटो पावर ओवर बिल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को कोई भी बिल्स होल्ड करने का कोई अधिकार नहीं है। द Supreme Court laid down the law that the governor is case the withhold and assent to a bill should send it back to the state legislature as soon as possible with the message to consider reconsider the proposed law if the assembly rather reiterated the bill with or with with or with or without amendment, the governor has no choose or discretion and has to give his assent to it. The November 10 judgment released on the Thursday was based on petitions filed by the Punjab government against the governor's action to hold back crucial bill. The verdict would be a significant boost to Tamil Nadu cases. The Tamil Nadu Assembly had written 10 crucial bills to Governor R.N. Ravi, who had withheld held assent in the first instance. The substantive part of Article 200 empowers the governor to withhold assent to the bill. In such an event, the governor must mandatory follows the course of the actions which is indicated in the first proviso of communicating to the state legislature as soon as possible as a message ra- ranting warranting the reconsiderations of the bill. Three judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud had ultimate authority, the ultimate decisions on the whether or not accept the advice of the government contained in the message belongs to the legislature alone. That the message of the governor does not bind the legislature is the evident from the use of the expression if the bill is passed against without amendment of the bench head. The court led that the governor who chose to withhold a bill without doing anything further would be acting to contravening
contravention of constitution, the governor as a unelected head of the state would be in a position in virtually veto the functioning of the legislative domains by the duly elected legislature by simply declaring that the assent is without any further recourse such as course of action would be a contrary of fundamental principle of the constitution democracy based on the parliament pattern of the governance of the court held. तो इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी बिल लेजिस्लेचर विधानसभा के द्वारा पास किया जाता है तो उसको जो है राज्यपाल बिना किसी पावर के वीटो पावर के अगर उसको वापस करता है और दोबारा लेजिस्लेचर अगर उसको संशोधित करके या बिना संशोधन के उसको फिर से विचार के बाद जो है फिर से उसको राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल के पास उस समय कोई अधिकार कोई वीटो पावर नहीं होता उसको अपनी मति देकर उसको वापस करने का। तो उसको वापस करना मस्ट जरूरी हो जाता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता उस बिल को रोकने का। अगर वह ऐसा करता है उसको फिर भी रोकता है अपने पास तो वह संवैधानिक मूल्यों का जो है अनादर करता है, उल्लंघन करता है, साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र का जो है अपमान करता है। तो भारतीय संसदीय लोकतंत्र का अपमान है, अपने उसका दुर्व्यवहार है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो राज्यपाल है अपने पावर का जो है मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है, किसी भी बिल को अगर रिपास किया गया है विधानसभा के द्वारा तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उस बिल को जल्द से जल्द उसको वापस भेजे असेंबली में अपनी सहमति के साथ साइन करके। तो ये था आर्टिकल, हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो अबाउट है जो राज्यपाल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में दिया। अभी हाल ही में तमिलनाडु, केरल, पंजाब ये सारे जो राज्य हैं इन्होंने पिटीशन दायर किया था राज्यपाल के पर सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जो बिल्स है कभी 3 साल से कोई 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है जिस पर राज्यपाल अपना मत सहमति देने में विलंब किया है। तो ऐसा पिटीशन दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं किसी भी वीटो को अगर किसी भी बिल को अगर रिपास किया जाता है असेंबली के द्वारा तो पास करना और जल्दी से जल्द अपनी सहमति के साथ उसको वापस भेजना जो है राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है। Second news is tunnels rescue delayed as a drill machines hit hurdle. मशीन में कुछ खराबी होने के कारण अभी जो रेस्क्यू वर्क्स है वो डिले हो रहे हैं। ये ऑपरेशन थर्ड पर है लेट अकम्प्लिश। और आज का जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल लिखा गया है। तो इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन चाइल्ड माइंड, जो भी वायलेंस होता है उसका बच्चे पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जैसा हमारा जो बचपन होता है, जब भी बच्चे जो है कोई भी बच्चा अगर बचपन में जैसे जिस माहौल जिस इन्वायरमेंट में ढलता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसका स्वभाव उसका अभिव्यक्ति उसका नेचर सारा उसी माहौल के हिसाब से रहता है। तो बचपन में वायलेंस होना बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट करता है ये चाइल्ड के ऊपर जो है, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है बच्चे जो है देश का एक फ्यूचर्स होता है। जैसे बच्चों को इन्वायरमेंट में दिया जाता है, जैसे एजुकेशन दी जाती है, उनका फ्यूचर जो है वैसे ही रहते हैं। अगर किसी बच्चे को उसके इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक दौर में अच्छे स्किल्स अच्छे नॉलेज
को दिया जाए तो आगे चलकर इन फ्यूचर में बेस्ट जो सोसाइटी बेस्ट इन जो है नेशन का निर्माण कर सकता है। तो अगर उसको वैसे ही बचपन में ही अगर किसी हिंसा के प्रति शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ उसको गलत शिक्षा मिलती है, तो उसका नेचर भी वैसी हो जाता है। तो एक रिसेंटली जो है मारिया मोंटेरिया Montessori would have felt amused by the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu resolve to finish off Hamas by bombing Gaza. She wrote classics such as A Secret of the Childhood and Absent Mind absorbent, but she also gave some hard-hitting lectures on war and peace during the 1930 collected under the under title Education and Peace. The speech collaborate on her lifelong mission to make world recognizing the significant early impression child encounters with violence person a collective felt motion cycle revenge Montessori saw this cycle is the root cause of the war. A few thousand children have been killed in Gaza, but many would be have survived. Montessori, his argument suggested that these survive will prove Mr. Netanyahu hope the folly. तो अभी जो इजराइल और हमास और साथ ही पैलेस्टीनियन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वार चल रहे हैं, उसमें लाखों बच्चे जो है मारे गए हैं, लेकिन अभी भी कई कई लाख बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उनको अभी से जो है वार का माहौल में उन लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो आगे चलकर उनका फ्यूचर क्या होगा, इस बारे में कंसर्न चिंता जताई गई है। एक राइटर के द्वारा एक अध्ययन किया गया है और साथ ही वार्निंग भी दी गई है फ्यूचर के डेटा पास्ट के कुछ डेटा को लेकर। सिमिलर आर्गुमेंट जो है रहता है। सिमिलर आर्गुमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय द सेलिब्रेटेड ज्वेलिश philosopher and writer Elias Senti in the books Crowd and Power. He devoted a section of the child mind Kennedy point and seed to a revengeful thought that the experience of violence lodge a young mind over time the groans into flow motive to resist social norms. फॉर द एग्जाम्पल हम जैसे समझे कि अगर फॉर द एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट के जो नॉर्थ वेस्ट का जो माहौल है, हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ उत्तरी उत्तरी जो राजस्थान है, गुजरात के कुछ क्षेत्र, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, यहाँ के इन्वायरमेंट का देखोगे, यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है थोड़ा सा आक्रामक रहता है, क्योंकि इस समय जो है हिस्टोरिकल काल से ही इस क्षेत्र में ज्यादातर युद्ध होते रहे हैं, वायलेंस होते रहे, उसका इम्पैक्ट अभी भी देखा जा सकता है उनके नेचर से, उनके बिहेवियर से। तो उस माहौल नेचर बहुत मतलब वायलेंस बहुत इफेक्ट करता है हमारे माइंड पे, स्पेशली अगर चाइल्ड माइंड की बात करें, पीस की बात करें, शांति की, तो थोड़ा सा आक्रामकता दिखती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वे माहौल में जिए हैं, उस माहौल में फील रहा है। तो जैसे कि वो एक सर्कल के तौर पर वे चलते रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी से। तो जैसे माहौल बच्चों के स्टार्टिंग में मिलता है, वैसा जो है लॉन्ग लास्टिंग चलते रहता है। इस आर्टिकल का यही है। तो वायलेंस और चिल्ड्रन का जो वायलेंस होता है, जो हिंसा बचपन में देखा जाता है, तो लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है, एक सर्कल के तौर पे चलता है। तो ये बच्चों के माइंड पे इफेक्ट करता है और उसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट। तो एजुकेशन क्या इफेक्ट, एजुकेशन उस वायलेंस को कम करने में भूमिका निभा सकती है। हाँ, कैन एजुकेशन मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द मैसिव डोज ऑफ वायलेंट। तो शिक्षा हिंसक कल्पना को जो है विशाल हिंसक कल्पना की विशाल खुराक को कम कर सकती है क्या? तो हाँ, अगर एजुकेशन को सही दिशा में और सही डायरेक्शन में दी जाए, सही इंटेंशन के साथ दी जाए, तो एजुकेशन जो है इस वायलेंस के खत्म कर सकती है। लेकिन अभी के दौर में जो
अभी का जो सिद्धांतता जो है, अभी एजुकेशन इज ए पोटेंशियल बट मोस्ट सिस्टम, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं आज की शिक्षा जो है अधिकांश प्रणालियों में शिक्षा की जो क्षमता है वो डगमगाती हुई नजर आती है, कमजोर जो है प्रतीत होती है शिक्षा की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया, यूक्रेन, इसराइल, अमेरिका, जो वर्ल्ड के सबसे जो है शीर्ष पर लिटरेसी रेट है, जिनकी साक्षरता दर हायर एजुकेशन के रूप में माने जाते हैं, फिर भी जो है अपनी शिक्षा के दम पर शांति को बहाल करने में अभी ये जो है फेल हुए हैं। तो ऐसे में दरकार हो जाती भारतीय शिक्षा की, आज भी भारतीय शिक्षा की उस शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता होती है, जो कि प्राचीन एशियन जो प्राकृतिक शिक्षा है, जिसमें विश्व शांति का माहौल शिक्षा दी जाती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की शिक्षा दी जाती है, वे आज प्रासंगिकता और भारतीय प्राचीन संस्कृति शिक्षा का जो प्रासंगिक है आज भी उतने ही रिलेवेंट प्रतीत होता है, क्योंकि आज के दौर में जहाँ भी हायर एजुकेशन है वहाँ शांति बहाल करने में विफल प्रतीत होते हैं। तो क्या जो कंसर्न है अ, अभी का जो कंसर्न है इजराइल और फिलिस्तीनियन के लिए का कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन पैलेस्टीनियन विल हैव टफ टाइम डिसाइडिंग देयर फ्यूचर, course of action Israeli to education has not played the building peace building role. 2 decades ago I attend a workshop. तो इंडिया से जो है इजराइल और फिलिस्तीनियन को दोनों को सीखने की जरूरत है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उस कैसे इम्प्लीमेंट करे, वहां पे कैसे ले, तो इसको अभी सीखने की जरूरत है। और साथ ही साथ पूरे दुनिया में जो है शिक्षा की एक नई प्रणाली को विकसित करने की जरूरत है, ताकि विश्व शांति को बहाल किया जाए। विश्व शांति के जरिए जो हमारे टारगेट्स हैं उसको अचीवमेंट किया जा सकता है, जैसे कि विश्व शांति, सभी तक जीरो हंगर पॉवर्टी, सभी तक ऊर्जा की समान पहुंच को अचीवमेंट उसको बोला जाता है। 17 टारगेट ग्लोबल जो टारगेट है, इसको पाने में जो है मदद हो सकती है शिक्षा को बहाल करके एक बेहतरीन शिक्षा। तो पर्यावरण के जो फैलती ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सकता है, और ग्रीन एनर्जी सभी तक पहुंचा जा सकता है। अगर विश्व में शांति बहाल रही, सभी तक जो है समृद्धि पहुंची, तो ये समृद्धि केवल एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के थ्रू ही पहुंची जा सकती है। विश्व शांति वसुधैव कुटुंबकम की जो प्रणाली है, इसके थ्रू जो है विश्व शांति और विश्व के जो ग्लोबल टारगेट्स हैं वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल हमारा, इसको जीएस पेपर 2 के साथ लिंकेज करके आप देख सकते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट फॉर हुम, जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो दौड़ है भारतीय इकोनॉमी की, वो किसके लिए है, आखिर में क्या है। तो इसमें बहुत अच्छी लेख है। लास्ट वीक at an elections rally in Chhattisgarh, Prime Minister Narendra Modi announced that he's extending the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, a scheme providing 5 kg of the food grains free every month of beneficiaries of the Nation Food Security Act by 5 years, because he does not want any citizens to sleep hungry. This means that the 80 crores India will be still receiving free grains to stave off hunger in 2028. This is the year of government expect India to become the third largest economy in the world with the GDP of 5 trillions. Will the large swaths
of India is still hungry with GDP 35 trillion. Who will benefit for the 5-year dash of his target? तो अभी रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ इलेक्शन में प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। 5 किलो हर व्यक्ति को मिला जाएगा। 5 किलो चावल जो है फूड ग्रेन्स जो नेशनल राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है सभी तक 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। यही वे नहीं चाहते थे कि जो है कोई भी आदमी जो है भूखा सोए। any citizens to skip hunger। तो इसमें विचारणीय बात है, एक सोचनीय बात है कि जो हमारी पीपल है, हमारे जो लोग हैं, वे कैसी है इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी किस दौर में जा रही। तो जो ऑक्सफैम के जो 2021 का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि जो 1% पॉपुलेशन है, 1% जो जनसंख्या उनके पास लगभग देश की 41% संपत्ति है। और वहीं अगर बात करें 50% जनसंख्या के पास 3% की संपत्ति है। तो ऐसे जो गैप है, उस गैप के बावजूद जो है कैसे जो है भारतीय इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो दौड़ है और साथ ही वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो दौड़ है उसमें शामिल हो सकती है। इसमें एक बिगेस्ट एग्जांपल है जापान की, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी है। थर्ड इकोनॉमी जापान की है, लेकिन वहां भी सोशल गैप जो है बहुत ज्यादा है। सोशल गैप वहां पे जो पेरेंटिंग है, for reference, let's look at Japan today, the third largest economy by GDP in the world. In Japan, there is a reportedly death and suicide every minute. Every 20 minutes, about 15 lakh Japanese have not left their homes for a year. जापान के एग्जाम्पल में कहा गया है कि लगभग जापान में हर 20 मिनट में एक व्यक्ति सुसाइड करता है और लगभग 15 लाख लोग आज 15 लाख जापानीज हैव नो लेफ्ट। कई साल से जो है 15 लाख जापानीज अपने घर से बाहर नहीं गए हैं और ऐसे को जो नहीं गए हैं, और साथ ही अपने पेरेंटिंग एक वहां के एक्ट्रेस को पे करते हैं अपने मम्मी पापा कहने के लिए। वे वहां की सोसाइटल जो ज्वाइंट फैमिली और साथ ही एक सोशल बॉन्डिंग है, वो कितना गैप है कहा गया है जापान के एग्जांपल को। वहीं इंडिया की बॉन्डिंग की बात करें, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर तो बेहतरीन है, लेकिन जो इकोनॉमिकल बात करें तो आज भी जो है लोगों के पास परचेसिंग पावर कम है। अपनी जो बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में अभी भी बहुत सारी जनसंख्या है। तो क्या करनी चाहिए अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए सभी तक पर्याप्त पहुंच और साथ ही साथ सभी तक जिसको समृद्धि सतत विकास कहा, सबका विकास सबका साथ जो मूल मंत्र दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए तो पर्याप्त जो है लोगों को जो युवा जनसंख्या फिल करने की जरूरत है, पर्याप्त रोजगार, साथ ही साथ जो कृषक क्षेत्र है उसको पर्याप्त जो है फैसिलिटीज देने की, और जो जलवायु परिवर्तन की साथ जो फसलों की असुरक्षा, फसल सुरक्षा को बेहतरीन करने की नीड है। और साथ ही साथ जो आयात निर्भर है, दालों की निर्भरता, तेल की निर्भरता है, इसको बढ़ाने के लिए जो है एमएसपी को, दलहन और तिलहन को बढ़ाने की दरकार है। साथ ही साथ जो है महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, गांव को एम्पावरमेंट करने की जरूरत है, ताकि जो भारी गैप है, जो एक खाई के रूप में जो 41% जनसंख्या, 1% जनसंख्या के पास 41% संपत्ति है, उसको कम किया जा सके और सभी तक समान न्याय, आर्थिक का समान
वो पहुंचा जा सके, ऐसे एम्पावरमेंट, ताकि जो $5 ट्रिलियन की देश में अपने सही मुकाबला कर पाए, और यहाँ की भुखमरी, बेरोजगारी और जो सामाजिक गैप है, जो सोशल गैप है, उस फुलफिल कर पाए। तो ये था आर्टिकल। इसको जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 और 3 के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। जो भी हर्डल है तो हम लिंक कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं भारतीय इकोनॉमी की स्ट्रक्चर्स। देन हमारे पास और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, वी हैव टू स्टॉप हेयर। तो हमें अब स्टॉप करना चाहिए होगा, क्योंकि हमारे लायक, हमारे इम्पोर्टेंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट, हमारे यूपीएससी के सिलेबस से कुछ इम्पोर्टेंस। तो मिलते हैं कल के न्यूज, नए आर्टिकल्स और नए खबरों के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और जरूर इम्प्लीमेंट करें द हिंदू के साथ, ताकि आपकी समझने की जो दायरा है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो, और आपका बेटर आंसर राइटिंग और साथ ही इंग्लिश वोकैब हो, ताकि प्रीलिम्स में, मेंस में हेल्पफुल है और उसको क्रैक कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बेहतरीन पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी इज ए नीडेड दिस एग्जाम्स। बाय एंड जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।